نبی کی یاد میں ہم نبی کی یاد میں ہم دل لگانے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی یاد میں ہم دل لگانے والے ہیں. او میرے حضور مدینے سے آنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جائے اپنے نبی کے جلسے میں، جو آج آ جائے اپنے نبی کے جلسے میں، انہیں حضور مدینے بلانے والے ہیں. تشریف فرما ہے اور یہ ساتھ میں ہمارے ایڈیشنل ایس پی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. کیونکہ آج یہ سنگ بنیاد ہے اس ادارے کا جو تیسری منزل چوتھی منزل، تو ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے. یہ جلسہ گاہ نہیں ہے بلکہ سنگ بنیادی تقریب ہے. الحمدللہ تعالی سنگ بنیادی تقریب آپ نے ملاحظہ کی ہے. اب چونکہ ہمارے معزز مہمان یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کے ہمیں تاثرات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. ہمیں بے حد احساس ہے اس چیز کا کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہمارے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ یا ہمارے ایڈیشنل ایس پی صاحب یا علماء کرام، سب کے پاس ٹائم بہت کم ہے. بس 2 منٹ میں آپ اس ادارے کے تعلق سے 2 باتیں آپ تک پہنچاؤں. کیونکہ آج کی جو تقریب کے ہمارے مہمان ریاست جموں کشمیر سے تشریف لائے ہیں، ہمارے تنظیم مدارس اہل سنت صوفی کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا محمد اشرف صاحب، جو جموں کشمیر کے تمام مدارس کی بہتر کارکردگی اور ان کی مربوط و مضبوطی کے لیے الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور بہتر انداز سے طریقہ ہو بھی رہا ہے. یہ جو ادارہ ہے اس کا نام ہے جامعہ فاطمۃ الزہرا. آج سے تقریباً 6-7 سال قبل جب یہ زمین خریدی گئی تھی، اس وقت ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. بڑی مشکل اور دقت کے ساتھ میں ہمارے عزیز ہیں قاری سید آفتاب صاحب، جو قد میں بہت کم، عمر میں بہت کم اور بہت بڑی خطیب کسی مسجد کے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو کام انہوں نے شروع کیا ایک اچھا ذہن لے کر کے کہ ہمارے سماج کے اندر لڑکوں کی تعلیم کے لیے جو بچے ہمارے مالی اعتبار سے کمزور ہیں یا غریب بچے ہیں، ان کے لیے تو مدارس کے اندر کام کیا جا رہا ہے. اچھی بلڈنگیں بھی ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے، تعلیم بھی ہے. لیکن ہماری لڑکی کے اندر جو ہے جو ہماری بچیاں ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، اس وقت جو ہے جب یہ لاک ڈاؤن سے بہت خوشی ہوتی ہے، یہاں پر 150 بچیاں ہمارے پاس زیر تعلیم تھی جو ہمارے جموں کشمیر سے اور باہر سے ہمارے تک کے بچے یہاں پر اور کئی ساتھی بچے یہاں پر زیر تعلیم تھی. الحمدللہ تعالیٰ کیونکہ بچے آپ جانتے ہیں کہ بچی کو تعلیم دینا یا کوئی سندر کو تعلیم دینا ہے. جب کوئی بھی مطلب مذہب کا ماننے والا مذہب کی تعلیم سے آشنا ہوتا ہے، وہ مفاد سے، ظلم سے، زندگی سے کیوں رہتا ہے. ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسے اداروں کو مضبوط کریں. آج ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں عزیز مکرم قاری سید آفتاب صاحب کو اور یہ تمام ٹیم کو جو یہاں پر کام کر رہے ہیں کہ بڑے کم مدت کے اندر 3 منزل بنا کر کے 4 منزل کے لیے بڑے ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور ایک الگ مدت کے وہاں جو ہے ایک تقریب کا شاندار نفاذ کیا ہے. تقریباً تمام علماء کو اختصار کے ساتھ میں کیونکہ ہماری جموں کشمیر کی مدارس کی ہڈی یا روح آپ کہیں گے اور درد کے ساتھ کام کرنے والے باتوں کی ہماری ایک جانی کا شخصیت قابل عزت حضرت مولانا محمد اشرف صاحب. اب ان سے درس کریں، اگر ہم انہیں سے سیکھیں تو ہم آپس میں کسی نوک جھوک میں نہیں لگیں گے. Humanity is the last frontier of every religion. انسان بنے ہم، ایجوکیشن ہمیں انسان بنانے کے لیے سکھائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. اگر ہم ہیومن نہ رہے، ہیومنٹی نہ رہے ہم میں پڑھ کے، پھر ہم کیا کہلائے جائیں گے؟ الانام بل ہم اضل السبیلا. ہم پیچھے لگے ہیں. یہ جو دنیا کریو ہو رہا ہے، نیا ماحول کریو کیا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے دوڑ میں لگے ہیں کہ میں اسے آگے چلے جاؤں.
چاہے کسی بھی طریقے سے، میں اس سے زیادہ امیر بنوں، اس سے امیر بنوں، اس سے زیادہ عزت کماؤں، اس سے عزت زیادہ کماؤں، لیکن ہم میں وہ انسانیت کی گم ہو گئی جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ لہذا اسی چیز کو مد نظر کر میں نے سورہ نساء کی جزوی آیت تلاوت کی۔ رب فرماتا ہے او مین کائنڈ who created you from a single person۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو صرف ایک سنگل پرسن سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ۔ اس کے بعد سورہ الحجرات میں آیا ہے کہ اس کے بعد اسی جز میں دوسری آیا ہے کہ اسی سے میں نے اس کا جوڑ نکالا، تب باقی ذریات آ گئی جس سے یہ ماحول پورا دنیا بنا ہے۔ لیکن پہلے بہت جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں انسان اللہ تعالی انسان محنت جہر میں کوئی شیء مذکورا انسان بولے کوئی انسان الزمنا طائره فی عنق والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بہت سی آیتیں آپ پائیں گے انسان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور سب سے جو پرائرٹی ہے وہ انسان، جو ہم میں اگر آئے گی تو ہمارا دنیا بھی اچھا ہوگا، ماحول بھی اچھا ہوگا، سب کچھ اچھا ہوگا، چاہے ہمارے پاس کم ہی عزت کیوں نہ ہو، کم پیسہ ہی کیوں نہ ہو، کم ہی عہدہ کیوں نہ ہو، لیکن ہم سیٹسفائی ہوں گے۔ لیکن اگر ہم دوڑ دھوپ میں چلے گئے، ہم میں وہ ہیومنٹی نہیں رہے گی، انسانیت نہیں رہے گی، اس کے لیے بہت سارے مثالیں ہیں، لہذا میں اس کے ساتھ کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسوں کو جن دنیا رات کی ترقی عطا کرے، اور جو ہمارے یہاں پہ عزیز محترم آپ لوگ بھی عزیز ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے السید الخادم القوم، جو قوم کا ہوتا ہے نا بادشاہ، جو قوم کا ہوتا ہے نا کوئی بڑا، وہ ہوتا ہے قوم کا غلام، نوکر خادم، یہاں الٹا ہے۔ لہذا اس کو ہیومینٹی ہمیں نہیں رہی، لہذا پاک نہیں ہو، دل پاک نہیں تو پاک نہیں ہو سکتا ہے انسان۔ اس کو بھی آج کے وجود کے فرائض وما علینا ڈی صاحب کی ایس صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ ہمارے مدارس کے اندر ایک سلسلہ اور ایک نصاب، ایک سلیبس چلا رہا تھا قدیمی طور پہ، جس میں صرف اسلامیات پڑھائی جاتی تھی۔ اب الحمدللہ ہمارے جو تنظیم المدارس کے تحت بہت سے پروفیسر حضرات، بہت سے مفتیان کرام اور علوم قدیمہ و جدیدہ کے ماہرین بیٹھے، اور بڑی قدر و کاوش کے بعد انہوں نے ایک ایسا سلیبس تیار کیا جس سلیبس کے تعلق سے میں یہ جملہ کہوں گا الحمدللہ، جو قدیم، نافع اور جدید صالح کا سنگم ہے، جس کے اندر ہم نے الحمدللہ علوم قدیمہ کو بھی رکھا ہے، علوم جدیدہ کو بھی رکھا ہے۔ جہاں پہ قرآن و حدیث بھی ہے وہاں پہ سائنس اور میتھ بھی موجود ہے، جہاں پہ علوم اسلامیہ ہیں وہاں علوم عصریہ بھی موجود ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جموں کشمیر کے سارے مدارس کے اندر گورنمنٹ سے منظوری دلا کر کے یہ نصاب رائج کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا بچہ اور ہماری بچی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کے ہر ایک کالج کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اب یہ اس کی اپنی ہمت ہے کہ کون سا دروازہ اس کے لیے کھلے گا، اور کالج اور یونیورسٹی کے اندر وہ داخل ہو کر کے اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری ہے، اور اس پہ ہماری ساری ٹیم کام کر رہی ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں کہ ڈی سی صاحب بہت مصروف شخصیت ہیں، اور الحمدللہ بہت جہاں تک ہمیں ان کو جانا ہے پہچانا ہے، بہت اچھے آدمی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور ان کے دفتر کے اندر آپ دیکھیے کتنی بھیڑ رہتی ہے لوگوں کی، اور لوگوں کا کام بھی یہ کر رہے ہیں۔ اور محترم لیاقت صاحب، ان کے تعلق سے میں کیا کہوں، وہ تو ہمارے گھر کے آدمی ہیں، بہرحال وہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور ادارے کے میزبان بھی ہیں۔ ان دونوں حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تحصیلدار صاحب کا، ایڈمنسٹریشن کے جتنے حضرات ہیں، علماء کرام ہیں۔ میں انہیں چند لفظوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ہمارے لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے تو بہت جگہ تعلیم کے مواقع ہیں، لیکن جہاں تک ہماری بچیوں کا تعلق ہے، خاص طور پہ ہمارے سماج میں، تو وہاں کچھ کمیاں ہیں۔ ہم
बच्चियों को कहीं स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, कुछ और परेशानियां हैं, तो इन सब के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि बच्चियों के लिए अलग मदारिस कायम किए गए। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बच्ची को पढ़ाना ये हो गया कि पूरे खानदान की तालीम हो गई। तो उलमाए इजलास से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि हमारे जो भी मदारिस हैं उनमें इस्लामी तालीम के साथ जो इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर और जो दुनियावी तालीम जिसको हम कहते हैं वो भी साथ में शुरू करनी चाहिए। तो एक साइड से हमारे किसी भी बच्चे के हाथ में कल उसके पास इस्लामी तालीम भी होनी चाहिए और दूसरी साइड वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या किसी को एक हाथ में अगर हम ये कहें कि हाफिज कुरान हो और दूसरी साइड से उसके पास लैपटॉप भी हो, तो यही हमारी इस वक्त आने वाली नस्ल की यही जरूरत होगी। लोग ये ख्याल करते हैं कि शायद इन मदरसों की बुनियाद किसी जमात या सियासी मकासद के लिए नहीं और नहीं रखी गई। यहाँ की बुनियाद में तावन हज़रत बाबा साहब मीर बशीर रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट की जितने भी मामले हम कर सकते थे हमने की है, बातौर सेक्रेटरी, बातौर खजानची मैं कहूँ, और आइंदा भी इसकी मामले जो जारी व सारी रखेंगे। लेकिन आपके महकमा जात से भी बहुत से यहाँ काम हुआ है, ताउन हुआ है, बहुत से काम अधूरे हैं। मेरी जनाब से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि आप जिस तरीके से आपकी पूरी टीम जिस तरीका से इस वक्त जिला में काम कर रही है, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ। बहसीयत एक अंजुमन, एक ट्रस्ट की हैसियत से, बहसीयत सियासी तौर से भी आपका और आपकी रुका का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ के अमन में, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा में जो आपका रोल इस अरसे से चल रहा है, तो मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूँ, आपके पूरे रुका जो है उनको सलाम करता हूँ। और मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी, यही गुजारिश रहेगी कि जिस तरीका से आपने गरीबों के लिए अपना दरवाजा खोल रखा है, वरना वहां जाने के लिए, मिलने के लिए एक आम गरीब को बड़ी मुश्किलात होती थी, आपका SSP साहब का और तहसीलदार साहब का इन सब का दरवाजा गरीबों के लिए खुला है। सियासी लोगों के लिए तो हमेशा खुला रहता है, लेकिन आज सियासी लोगों का आपकी वजह से बंद है और गरीबों का खुला है। बस मैं इसी पे इंतजाम करूंगा, इंशाल्लाह बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो हम अनकरीब अपना एक और प्रोग्राम करना चाहते हैं ट्रस्ट की तरफ से। उस सिलसिले में मेरी जनाब से गुजारिश इस तरह से मैंने की है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया है, इंशाल्लाह हम उस मसले को पूरा करेंगे। तो मैं इसी पे इंतजाम करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारी रियासत में, मुल्क में अमन और सलामती कायम रखे और हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखे। सबसे बड़ा सरमाया हमारा यही है, हिंदू मुस्लिम सिख एकता भाईचारा, इसको हमेशा कायम रखना है और अफवाहों पे जो है हमने ध्यान नहीं देना है, अपनी सखों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखना है। वह आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मेरी तो खुशी से है कि आप लोगों ने ताउन किया, मेरा साथ हर वक्त आपने दिया, जब भी ऐलान किया आप लोग मेरे पास पहुंचे। मैं आज सबसे पहले वक्ती लोगों की साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जब भी इनके पास थे इन्होंने कभी मुझे लौटाया नहीं, और जब भी इनको फोन किया इन्होंने फौरन मेरा फोन रिसीव किया। मैं इस रस्ते के बारे में जो काम किया इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ SD लियाकत साहब चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी बातें यहाँ तशरीफ लाए, इस्तार साहब हमारे यहाँ आए और जितने अरकान कमेटी की तरफ से हमारी कमेटी के बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। ए मोहम्मद अफसर साहब, जनाब सैयद सरपंच अमीर हुसैन साहब साहबा और दीगर मेरे लोग सब बैठे कमेटी से मुख्तार हुसैन साहब, हाजी यूसुफ साहब किला और पीर साहब और जितने मेरे भाई आए राजवीर साहब, जितने मेरे लोग बैठे हैं, सबका जंगली सरपंच साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मौलाना शेख साहब, मदरसा साहब, मुफ्ती फारूक हुसैन इस्माइल साहब जिनकी क़यादत में काम कर रहा हूँ, इन सब को उलमा इकराम का आपका मेरे साथ इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी आपकी नसीहत करते हैं। मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बिलखसूस एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब, SP साहब और जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनका और अपने भाइयों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ करता हूं अल्लाह आप सबको सलामत के खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ यहाँ आए एडमिनिस्ट्रेशन के मेरे साथी,
इस तरफ बैठे हुए बहुत ही नॉलेजेबल और समाज में इज्जत रखने वाले मौलाना हजरात, सभी लोगों का नाम तो नहीं मैं जानता हूँ, और सामने बैठे हुए आसपास के बुजुर्ग व नौजवान, जहाँ जिन लोगों ने अपने विचार रखे वो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, उनका जो रिलीजियस बुक्स हैं उनका भी नॉलेज है, लाइफ का भी नॉलेज है। उनके सामने शायद मेरे जो इन विषयों पे नॉलेज है वो बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी इन सबको सुनने के बाद वो जो मेरे मन और दिमाग में होता है, जब भी मैं किसी पब्लिक में जाता हूँ तो मैं उसको बोल देता हूँ। तो अगर कोई बीच में गैप होगा तो आप उसको नजरअंदाज करिएगा। जहां दो चीजों पे मैं अपनी राय रखना चाहूंगा, और मुझे बड़ी खुशी है उस बात को सुनकर भी कि आज जो आप तालीम देने जा रहे हैं, जो एजुकेशन देने जा रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में वो आप रिलीजियस और जो साइंटिफिक है दोनों के संगमी मिलाप, दोनों का जहां मिश्रण हो, उसको देने जा रहे हैं। वो जिन बच्चों को ये इस किस्म का एजुकेशन मिलेगा, उनके पूरे जीवन के लिए वो एक संजय बुनियाद होगा। देखिए, कभी कभी हम बड़ा नैरो तरीके से सोचते हैं, लेकिन आखिर रहना तो हमें इसी समाज में है, रहना तो हमें इसी यूटी में है या इसी कंट्री में है। आज कंट्री भी क्या, आज जो वर्ल्ड भी है वो एक ग्लोबल विलेज है, उसको भी विलेज कहते हैं। मैं आपके सामने एक वाक्य रखना चाहूंगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्ची आई थी यहाँ की, तो उसने कुछ इश्यूज रेज किए थे, उसका कोई इश्यू था, तो बातों में मैंने उसका एजुकेशन पूछ लिया। उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और उसका जिस किस्म से वो बातें कर रही थी, तो मैंने उसका एजुकेशन पूछ लिया और बातों में उसका फ्यूचर प्लान भी जो है उसने मुझे बता दिया। वो बच्ची इसी के जहां की रहने वाली है, जहां पढ़ी हुई है, जहां से ही पढ़ के वो मोरंडा हाउस में चली गई। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है मोरंडा हाउस, वहां चली गई है और वहां से अभी 2-4 दिन में उसका वीजा क्लियर होकर के पीएचडी के लिए लिवरपूल यूनिवर्सिटी में जा रही है। तो आपका जो जहां बताया गया, यकीनन दोनों एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। एक जो एजुकेशन है वो इंसान को इंसान बनाए रखने में, ह्यूमैनिटी इसमें रहे और सही और गलत में फर्क करने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो एजुकेशन है उसको इस समाज में, इस कंट्री में और अपने हम उम्र जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो कम्पीट नहीं करेंगे, सिस्टम में नहीं आएंगे, तो उसकी लाइफ जो है वो बेहतर नहीं होने वाली है। तो इंसान बनना सबसे ऊपर है, इंसान के साथ अपनी लाइफ बनाना, अपने आने वाले पीढ़ियों की लाइफ बनाना उतना ही फर्ज है, और उसमें योगदान देना जो आज जहां लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनका ये ड्यूटी है। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी है जिसको ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जहां कहते हैं कि जो वेल्थ है कुछ हाथों में नहीं जमा होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो जब भी कोई कम्युनिटी का एफर्ट होता है, जैसे इस किस्म के इंस्टीट्यूशन है जहां जिन लोगों के पास पैसा होता है वो पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, और वो चंदा जो है वो समाज के किसी बेहतर काम के लिए, नेक काम के लिए इस्तेमाल होता है, तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो वो ट्रिकल डाउन थ्योरी जो इकोनॉमिक्स की है वो चलती है, क्योंकि गरीब के पास पैसा पहुंचना ट्रिकल डाउन थ्योरी है। जो बच्चे जो पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, अगर वो किसी अमीर के पैसे से अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो जो है वो ट्रिकल डाउन थ्योरी है और प्रूव्ड थ्योरी है। दूसरा है वेल्थ जो है वो चंद हाथों में नहीं रहनी चाहिए। तो जब भी जिन लोगों के पास कुछ पैसा होता है और उनकी हैसियत होती है कि वो उस पैसे को किसी अच्छे काम के लिए दे सकते हैं,
तो वो इस चीज को भी जो है प्रूव करते हैं कि वो उनके पास वेल्थ तो है, लेकिन वो वेल्थ को ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ जो है वो दे रहे हैं। यकीन है मुझे, और थोड़ा बहुत आइडिया भी है कि आपके धर्म में, सभी धर्मों में ये चीजें लिखी हैं, पर ये भी लिखा है कि अपनी, आपका क्या स्पष्ट लिखा है कि अपनी कमाई का कुछ पार्ट जो है वो देना ही देना है। तो इसी तरह से एक और उसको आप रिलीजन कह लीजिए या सेक्ट कह लीजिए, दैट इज सिखिज्म। आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में उनके जो काम है, जो कम्युनिटी पैसे से आते हैं, उनके जितने भी गुरुद्वारा साहब हैं बड़े बड़े, वहां 24/7 फ्री लंगर होता है, विदाउट एनी डिफरेंस, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई कहाँ का है, कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बड़ा है, छोटा है, खाना खाते हैं, 24 घंटे जाते हैं, कोई वो नहीं है। इवन के कोविड में उन्होंने अस्पताल बना दिए। तो एक वो भी एक कम्युनिटी है जो इस किस्म के कामों में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में भी जानी जाती है। तो पहले ही मैंने कहा कि आप जहां इस साइड जो लोग बैठे हैं मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों पे मेरे से रहा नहीं जाता, तो मैं भी जो है वो बोल देता हूं। आप लोग नए काम करिए, नए काम ही करने के लिए जो है एजुकेशन, इन लोगों को, आप लोगों को तालीम है। अगर तालीम लेकर नए काम नहीं करेंगे तो फिर उस तालीम का कोई फायदा नहीं। अगर पैसा होने के बावजूद जो है गरीब की मदद नहीं करेंगे तो उस पैसे का भी कोई मतलब नहीं है। जो भी आदमी के पास ताकत है, ताकत किसी ने ये कहा, ताकत जो है जो दिखाने के लिए नहीं है, ताकत सहायता करने के लिए है, मदद करने के लिए है। वही मैं अपने अफसरों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई पावर है तो वो पावर जो है गरीब लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करिए, उनको जो है वो राहत पहुंचाइए। तो उसी से जो है, उसी से हमें शांति भी मिलेगी, चैन मिलेगा, और समाज में एक अच्छा जो है वो नमूना भी पेश होगा। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं, जिन्होंने कहा मेरा फोन उठाते हैं वो मेरी आदत है, इनका नंबर नहीं है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ मिसबाई साहब का नंबर है। जब भी ये करते हैं, कोई भी फोन करे तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कहीं मीटिंग में ना हो, कहीं ना हो, तो फोन उठाते हैं और अपने सभी लोगों को भी बोलते हैं कि फोन उठा के सुन लीजिए, और उससे मेरी राह आसान होती है, इनकी नहीं। मुझे बालाकोट में जाने के बजाय बालाकोट से ही फोन करते हैं, तो मैं इधर से ही देख लेता हूँ कि बालाकोट में क्या कर रहा है। तो इनको मैं दिशा में एक क्रूसेडर होने के, इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए और इतने एफर्ट करने के लिए इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास रियासी से, हिमाचल से और दूर दूर के एरिया से जो है जहां बच्चियां आती हैं और उनको तालीम देते हैं, आज इन्होंने उसको और बढ़ाने की कोशिश की है। तो उसमें हमें भी यहाँ शामिल होने की एक अवसर मिला है, उसके लिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं और हम शुक्रिया भी करते हैं कि इन्होंने हमें भी बुलाया इस शुभ काम के लिए, नेक काम के लिए। ऊपर वाला करे कि इनका जो एफर्ट है वो सभी लोगों का सहयोग मिले, अच्छे लोगों का सहयोग लेना तो अच्छे लोगों का, ठीक है, सभी लोगों का सहयोग मिले और ये जिस काम में काम को चलाने में कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी तरह से चले। लेकिन आखिर में एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि तालीम जो एजुकेशन है वो इंसानियत वाली भी दीजिए, और जो मिरिंडा हाउस और लिवरपूल जाने वाली है वो भी दीजिए बेशक। और बच्चियों को तालीम देना इतना जरूरी है कि एक बच्ची को तालीम देने का मतलब है कि 2 परिवारों को तालीम देना। तो इसको आप उनके सपनों को देखिए, उनकी आंखों के बीच जो सपने हैं वो भी देखिए, उनको भी उड़ान लगनी चाहिए। ये खन्ना मंडी की एक बच्ची है, प्रिज्म कुछ करके है, बाकी का प्रिज्म वो एयरफोर्स में है ना। हाँ, तो इनके सपने हैं, जो इनकी उड़ाने हैं, उसको पंख लगाइए प्लीज। इनको इंसानियत की तालीम के साथ साथ इनको लिवरपूल जाने, PhD करने का और गंभीर विषयों पर रिसर्च करने का भी चांस दे दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू।